Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 26. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. Let's start with the summary of previous lecture. In our previous lecture, we are still discussing the different phases of the database system development life cycle, and if you remember that we have discussed a number of phases, and now if we look at the phases that we have already discussed in our previous lecture, it was requirement collection and analysis, a very important phase and also a critical phase. Then we discussed database design, and database design was further subdivided into three phases: conceptual database design, logical database design, and physical database design. Then we worked on an optional phase that was database management system selection, and we discussed the different criteria for selecting a particular database management system, or what kind of factors should be considered when we are selecting a particular database management system. Then we discussed the application design, which were further subdivided into the transaction design and user interface design, and we discussed different factors that should be considered, or the guidelines that should be considered when we are working with the application design, and specifically the user interface design. So let's start with the today's lecture, and we will start again from the next phase, that is in the database system development life cycle. The next phase that could be performed in any project, and specifically when we are talking about database system development life cycle, that is the prototyping. Prototyping means building working model of a database system. So this phase could also help in gathering the requirements in a more understandable way, and it is a natural way by which you can model your database system. It is not a completely functional model, but it's a model, and you can show it to your customer, and then your customer can look at this model, and then you can come up with certain feedbacks. So purpose of prototyping includes to identify features of a system that work well or are inadequate, to suggest improvements or even new features, to clarify the user's requirements, to evaluate feasibility of a particular system design. प्रोटोटाइपिंग का पर्पस क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो सिस्टम के अंदर फीचर्स हैं, जो सिस्टम के अंदर हमने रिक्वायरमेंट्स दी थी, क्या वो फंक्शनैलिटी सही परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ठीक है, कि जो जो फीचर्स आप अडॉप्ट कर रहे हैं इस सिस्टम के अंदर, क्या वो वर्क वेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे. दूसरी चीज़ हमने प्रोटोटाइपिंग के अंदर ये देखी है कि क्या हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर न्यू इम्प्रूवमेंट्स या न्यू फीचर्स जो हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. फिर हमने ये देखा है कि क्या ये जो प्रोटोटाइप मॉडल बना है इसने यूज़र्स की तमाम रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिफाई किया है या नहीं किया. और लास्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं फिजिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम डिज़ाइन को. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग. One is requirements prototyping and the second one is evolutionary prototyping. So let me explain these types of prototyping one by one. So first of all, we will talk about requirements prototyping. Requirements by prototype consists of planning and then developing a sample deliverable for the users to play with, review and modify.
Prototyping takes some pressure off the users. They don't need to specify all of the requirements upfront without having evidence that they work. This type of prototyping is useful for exploring ideas and getting instant feedback for customer requirements. Okay, second type of prototyping is evolutionary prototyping. This type of prototyping is helpful for a project which uses a new technology that is not well understood. It is also used for a complex project where every functionality must be checked once. It is helpful when the requirement is not stable or not understood clearly at the initial stage. Okay, our next phase is implementation. अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करता चलूँ. अभी मैं वन बाय वन इन सारे फेजेस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ इंडिविजुअली, लेकिन आखिर में हम इन तमाम फेजेस को सम अप करेंगे ताकि आपको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि इन सारे फेजेस का क्या मकसद था और इनके अंदर जो एक्टिविटीज़ थी वो क्या थी और किस तरह वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती थी, यानी एक फेज़ का दूसरे फेज़ के साथ किस तरह रिलेशनशिप था. Use DDL to create database schemas and empty database files. So in this case, empty database files which are nothing but tables. Implementation also use DDL to create any specified user views. If there are certain user views required at this level, so maybe you can create those views. As you know, we have already learned how to create tables and how to create views. You can use those statements and keep in mind there are always different possibilities. कि जी कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको DDL के थ्रू टेबल क्रिएट करने देते हैं, लेकिन कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी टेबल या व्यू क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. और आप लोगों ने देखा होगा कि GUI के थ्रू टेबल्स और व्यूज़ को क्रिएट करना ज़्यादा इजी है. Implementation also use 3GL or 4GL to create the application programs. अब यहाँ पर आप थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्रिएट करेंगे. इसके अंदर आपकी C++, जावा, पर्ल, ये तमाम लैंग्वेजेस आ जाती हैं. ठीक है, तो आप उनके थ्रू क्या है, आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्रिएट कर रहे हैं. एंड दिस विल आल्सो इंक्लूड द डेटाबेस ट्रांजैक्शंस implemented using the DML data manipulation language, possibly embedded in a host programming language. अब keep in mind जो आपके application programs होंगे they will be interacting with the database or you need to embed some certain data manipulation language statements with those programming languages. Okay, our next phase is data conversion and loading. Transferring any existing data into new database and converting any existing applications to run on new database. Data conversion and data loading could be in a situation when you have existing data and most probably any organization, that is whether it was working on file-based system or it was working on manual work, तो इस सारी सूरत में उनका जो पहले वाला डेटा है वो आपको इस नए डेटाबेस के अंदर इंक्लूड करना है. You need to basically load that data into the new database system. So you only required when new database system is replacing an old system. Database management system normally has utility
that loads existing files into new database। अब इस केस में आपके पास बहुत से यहाँ पे यूटिलिटी टूल्स अवेलेबल हैं जो कि क्या करेंगे, आपके पुराने डेटाबेस सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो न्यू डेटाबेस सिस्टम के अंदर लोड करवा देंगे। ठीक है, यानी जो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं ऑलरेडी पहले से, वो आपकी न्यू डेटाबेस सिस्टम के अंदर एम्बेड हो जाएंगी। It may also be possible to convert and use application programs from old system for use by new system। तो अब इस केस में क्या होगा, आपके जो पुराने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स थे एग्जिस्टिंग सिस्टम के, अब वो आपके न्यू सिस्टम के ऊपर भी रन हो सकते हैं क्योंकि आपकी डेटा कन्वर्जन हो चुकी है। एंड यू वांट स्टिल दीज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स शुड वर्क विद न्यू the database, then developers needs to make some changes in those application programs। फिर आप उसके थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये काम जो है इस फेज के अंदर होगा, लेकिन कीप इन माइंड दिस फेज कुड बी वेरी कॉस्टली। कॉस्टली किस सेंस में मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मीन्स आपको इसके लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, आपको इसके लिए कॉस्ट रिक्वायर्ड है, आपको इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है। तो ये तमाम चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी होंगी। ठीक है, इस फेज़ में जब आप डेटा कन्वर्जन या लोडिंग करेंगे, आप जब न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एम्बेड करेंगे न्यू सिस्टम के ऊपर, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम को न्यू सिस्टम के ऊपर, तो इसके लिए आपको ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो इसके थ्रू आपकी जो सिस्टम की कॉस्ट है वो बढ़ सकती है और ये फेज़ जो है इट कुड बी वेरी कॉस्टली फॉर यू। Our next phase is testing. Process of running the database system with intent of finding errors। टेस्टिंग नेम से ही आपको ये चीज़ डिपिक्ट हो रही है कि टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आप किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करके देख रहे हैं और उसमें आप ये चेक कर रहे हैं कि आपके उस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर या बग्स तो नहीं आ रहे, और अगर वो एरर और बग्स आ रहे हैं तो क्या आपका वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो वर्क कर रहा है या वर्क करना छोड़ गया। यूज केयरफुली प्लान टेस्ट स्ट्रेटजी एंड रियलिस्टिक डेटा। अब सबसे पहले आप ये है कि जब भी आप टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले आप कुछ स्ट्रेटजीज प्लान कर लें। ठीक है, और किस डेटा के ऊपर आपने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। Testing cannot show absence of faults, it can show only that software faults are present। टेस्टिंग का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपके सिस्टम के अंदर अगर कोई फॉल्ट्स आ जाते हैं, कुछ एरर्स या बग्स आ जाते हैं, तो टेस्टिंग आपको ये नहीं है कि वो एरर और बग्स आपको शो नहीं करवाएगा। टेस्टिंग का मतलब ही ये है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फॉल्ट्स आ जाते हैं जो कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रेजेंट हैं, तो टेस्टिंग के थ्रू वो तमाम एरर और बग्स आपको शो होंगे। इट डिमॉन्स्ट्रेट दैट डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अपीयर टू बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। और टेस्टिंग के थ्रू हमें ये डिमॉन्स्ट्रेशन मिल रही है कि जो आपका डेटाबेस, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जो हमने स्टार्ट में रिक्वायरमेंट्स दी थी, रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी हमने यूज़र से, क्या ये अब उसी से रिलेटेड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इट शुड ऑल्सो टेस्ट यूजिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। यहाँ पर यूजिबिलिटी से क्या मुराद है, यूजिबिलिटी से ये मुराद है इज़ इट ईजी टू यूज़, कि जो आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया है, जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, क्या यूज़र के लिए वो इजी टू यूज़ है या नहीं है, यूज़र इजीली उस पर टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। एंड द लास्ट पॉइंट इज एवेल्युएशन कंडक्टेड अगेंस्ट अ यूजिबिलिटी स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे जो आप एवेल्युएशन कर रहे हैं वो किसकी बेसिस पे कर रहे हैं, यूजिबिलिटी स्पेसिफिकेशन की बेस पे कर रहे हैं जी। तो नेक्स्ट जो है वो है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। इसका क्या मतलब है कि हम लोग अब जो इवैल्यूएशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमने पिछली लास्ट स्लाइड में देखा है, इवैल्यूएशन कंडक्टेड अगेंस्ट अ यूजिबिलिटी स्पेसिफिकेशन, तो उस इवैल्यूएशन के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया गया है। एग्जाम्पल्स ऑफ द क्राइटेरिया दैट कैन बी यूज्ड टू कंडक्ट द इवैल्यूएशन इंक्लूड
लर्नेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रोबस्टनेस, रिकवरेबिलिटी एंड इन द लास्ट एडाप्टेबिलिटी। अब हम वन बाय वन ये जो तमाम हमारे एवेल्युएशन क्राइटेरियाज हैं इनको डिफाइन करेंगे। अच्छा, पहला जो आपका एवेल्युएशन क्राइटेरिया है दैट इज लर्नेबिलिटी। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया है लर्नेबिलिटी। अब हम लर्नेबिलिटी को देखेंगे कि लर्नेबिलिटी के केस में क्या होता है। हाउ इजी इट इज टू लर्न टू वर्क विद दिस न्यू सिस्टम। लर्नेबिलिटी का मतलब ये है कि ये कितना आसान है नए सिस्टम के साथ जब आप काम करेंगे तो क्या आप उस नए सिस्टम को इजीली लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सेकंड जो हमारा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है दैट इज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो परफॉर्मेंस के केस में क्या होगा, परफॉर्मेंस के केस में क्या डिफरेंस आया है कि परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज हुई या नहीं हुई, मींस हमने अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया या नहीं। अब इस केस में हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो सिस्टम है इसके ऊपर क्या परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। अगर हमने न्यू सिस्टम अडॉप्ट किया है तो इसकी परफॉर्मेंस एग्जिस्टिंग सिस्टम की तरह ही है या इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, और क्या इसने हमारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट एवेल्युएशन क्राइटेरिया इज रोबस्टनेस। जी, रोबस्टनेस मींस अगर कोई एरर भी आ जाता है तो स्टिल आपका सिस्टम कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर कोई फॉल्ट्स, एरर या बग्स आपके सिस्टम के अंदर आ गए हैं तो आपका सिस्टम जो है वो वर्क करना छोड़ दे। अगर ऐसा है तो आपका सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, मतलब वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा, तो यूज़र कभी भी आपके उस सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं होगा। नेक्स्ट वैल्यूएशन क्राइटेरिया इज रिकवरेबिलिटी। In case of error, how fast this system recovers from those errors। इसका क्या मतलब है कि अगर एरर आ भी जाते हैं आपके सिस्टम के अंदर तो कितने टाइम पीरियड के अंदर वो एरर्स को रिकवर कर लेगा। ठीक है, जितने कम टाइम में एरर्स रिकवर होंगे आपका सिस्टम उतना ही फास्ट, एफिशिएंट और रिलायबल होगा, और आपका यूज़र जो है आपके उस सिस्टम को लाइक करेगा। नेक्स्ट एवेल्युएशन क्राइटेरिया इज अडाप्टेबिलिटी। अडाप्टेबिलिटी के केस में क्या है कि अगर कोई चेंजेस आते हैं, कोई मॉडिफिकेशंस आती हैं, तो सिस्टम में अडाप्टेबिलिटी की कितनी सलाहियत है। ठीक है, समझ आ गई आपको। यानी आप कोई चेंजेस अडॉप्ट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर आप कोई नया मॉड्यूल इंटीग्रेट कर रहे हैं, कोई नई मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो क्या ये सिस्टम इस अडॉप्टेबिलिटी को अडॉप्ट करेगा या नहीं करेगा। मतलब आपने नया मॉड्यूल इंटीग्रेट करवा दिया है, तो नया मॉड्यूल इंटीग्रेट कराने के बाद क्या आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है जैसे पहले उस सिस्टम के, जैसे पहले उस मॉड्यूल के इंटीग्रेट होने से पहले वो काम कर रहा था। तो ये तमाम वो एवेल्युएशन क्राइटेरिया हैं जिसकी बेसिस पे हम लोग ये तमाम टेस्टिंग को चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एवेल्युएशन क्राइटेरिया। ओके स्टूडेंट्स, our लास्ट फेज इज ऑपरेशनल मेंटेनेंस, प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग डेटाबेस सिस्टम फॉलोइंग इंस्टॉलेशन। ऑपरेशनल मेंटेनेंस के केस में क्या हो रहे हैं, हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और डेटाबेस को मेंटेन कर रहे हैं। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ ए सिस्टम, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, इफ परफॉर्मेंस फॉल्स मे रिक्वायर ट्यूनिंग और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटाबेस। अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं सही आ रही, परफॉर्मेंस कम हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को ट्यून करना पड़ेगा या हमें अपने डेटाबेस को दोबारा से क्या करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग डेटाबेस एप्लीकेशंस व्हेन रिक्वायर्ड। अगर आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को या तो अपग्रेड कर देंगे या अगर उसके अंदर कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है तो हम वो करेंगे। एंड इन द लास्ट, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू रिक्वायरमेंट्स इनटू डेटाबेस एप्लीकेशंस। या हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारी पुरानी रिक्वायरमेंट्स थी
उनके थ्रू हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम सही वर्क नहीं कर रही, तो हम यहाँ पे अपनी न्यू रिक्वायरमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करवाएंगे उस डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर, ताकि वो प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर दे।